नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था आइसक्रीम मैन हमारी पोइम. वी हैव स्टडीड द पोइम. आई हैव टोल्ड यू द सेंट्रल आइडिया एंड द meaning of this poem, the new words as well. These are the new words: blessed, trundling, mounts, frosty fish, cluster. So I have told you. I hope that you have remembered all these new words. Now come to the questions. I have given you to do these 5 questions in my previous video. I have also told you the answers. I think you have completed these all 1 2 3 4 5 questions. Okay, now come to the next one. This is okay. Let's continue. Having an ice cream on a hot summer day is exciting and enjoyable. Okay, हॉट समर डे में आइसक्रीम एक्साइटिंग और एंजॉयबल होती है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन one can do in winter season. My dear students, listen carefully. Here the question is asking about winter season, not about the summer season. Though our chapter is related to summer season, ice cream man comes in summer season. Okay, but the question is asking about the enjoyable or exciting things that one can do in winter season. Okay, so you have to read the question very carefully before answering. Okay, it is very important. Okay, so what are the enjoyable activities in winter season? In winter there are a lot of exciting activities. One can enjoy having hot drinks and foods. Okay, or one can play indoor games like carom, ludo and table tennis. Okay, we can also enjoy hot milk or hot tea. Okay, so these all are exciting and enjoyable activities that one can do in summer season. So you may write all this. Now come to the next one. List as many summer activities as you can. Okay, now here we have to write summer activities. What are the summer activities that one can do? You may write like first, swimming. The picture already showing the activity swimming. SWIMMING, swimming. Okay, now second number पे आप लिख सकते हैं enjoying the tree shade. Okay, तो tree shade हो गया, tree shade. Okay, now swimming, tree shade. Now come to the next next one is picnic in the garden. Okay, so picnic हो गया, PICNIC, picnic हो गया. now come to the next one, number 4. Okay, number 4 is playing indoor games. Okay, you may write playing which games? Indoor games, INDOR, indoor. Okay, so these are summer activities you may do. You may write all these activities. Okay, now come to the next question, number 3. Question number 3 is, now group these activities into indoor and outdoor activities. Now whatever activities we have written in question number 1 and question number 2, now we have to group all these activities into indoor and outdoor. Students, the activities we do in our home or house, it is called indoor activity, and activities we do outside the home is called outdoor activities. They may take place in in a garden or in a ground or in a playground. Okay, so I think you may easily divide them into indoor activities and outdoor activities. So write indoor here, indoor games or the all activities, and write outdoor games or outdoor activities, you may write here. Okay, so I think it is easy. Let's come to the next question. Circle the words where you get z sound. Okay, students, listen. This one is z sound. Z sound. Honey bees. Okay, you may circle price, price, z sound. Maze,
ओके, फेस नहीं आ रहा है साउंड, राइस, राइज, ओके, ब्लेज, फिज, ओके, लेजी, लेसी नहीं आ रहा, बीजी, रेसी, रेज, रेज, रेस, एस, चेस, दिस, दीज, फ्रॉस्ट नहीं होगा, ओके. So these all are the words that have z sound, okay. So you have to circle all this one. So this one is also very easy. Now come to the next. Okay, this question, very important question. Listen and tell the sounds that these words in the poem produce. Cart, cart, which sound does the cart produce? Which sound does drinks produce? Okay, let's go to the poem first. Okay, listen, go to the poem and we'll find. Cart, goes trundling, goes cart, listen beta, goes trundling down the street. So the sound of the cart is trundling, okay. And the sound of the drinks is vanilla, chocolate, strawberry, the chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, frosty fizz. So fizz, fizz it means, let me tell you, frosty fizz, chilled drink making a hissing or bubbling sound, okay. So what is the sound of the drinks? Hissing and bubbling. So you may write like this, that here in this you may write trundling, trundling, trundling sound, and drinks, hissing or bubbling sound, okay. hissing, hissing or bubbling, okay, bubbling sound you may write here, okay. So these are the sounds. Can you make these sounds? अगर आप बना सकते हैं साउंड तो बना के देखिए, okay. Now come to the next one. What are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? Now you have to write some of the different sounds you hear when the ice cream man comes, okay. जब भी आइसक्रीम मैन आता है तो कौन कौन से साउंड आप सुनते हो वो आप लिखेंगे, ओके. सो आप लिख सकते हैं ये आपके एक्सपीरियंस से, ओके. नाउ फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट. This is a paragraph. In this paragraph here is a report on Uncle Lal's farm, okay. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. Father took me to visit Uncle Lal's dairy farm. I saw all of Uncle Lal's cows. He has 50 cows. They eat grass and big green farms, okay. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sell his milk in the city, okay. So this is the paragraph report. Now when writing a report, remember to do these things, okay. देखिए बेटा, आप एक रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिए. कोई भी आपने जो कुछ देखा, जो कुछ ऑब्जर्व किया आपने, उसके बारे में आप लिख रहे हैं. वो रिपोर्ट लिखते वक्त कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है. आप अंकल लाल के जो फार्म है, उसका खेत है, उसका जो खेत है उसके बारे में, उसके फार्म के बारे में, उसकी डेयरी के बारे में जो रिपोर्ट यहाँ लिखी है, इसको ध्यान से देखिएगा. किस तरह से ये रिपोर्ट बनाई गई है, उसी तरह से आप भी ऑब्जर्व करके रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं किसी सिचुएशन के बारे में या फिर किसी जगह के बारे में, ठीक है. ये रिपोर्ट तैयार की जाती है. अब रिपोर्ट तैयार करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. थिंक ऑफ ए गुड टाइटल. सबसे पहले अच्छा टाइटल उसको ढूंढना है. राइट इट करेक्टली. कीप इट टू योर सब्जेक्ट. और तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में लिखना है बहुत ज़्यादा, उसमें इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है. टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर. और चीज़ों को सही तरीके में बताना है. ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पहले हो रही है उसको आप बाद में बताओगे और बाद की चीज़ को पहले, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ओके. मेक योर पेपर लुक नीट. और मेक योर पेपर लुक नीट. और ये भी देखें कि आपका जो पेपर, जो रिपोर्ट आप लिख रहे हैं वो अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, ठीक है. सो ये इस तरह से आप बना सकते हैं. इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट ए रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया. बेटा आप देखिए, आप
आप क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए एक रिपोर्ट है कि आप लिख सकते हैं एक रिपोर्ट किस पर, राइट ए रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल इन योर एरिया। आपके एरिया में किस किस ब्रांड की, यानी कि किस किस फ्लेवर की और कौन कौन सा ब्रांड है जिसकी आइसक्रीम्स आपके यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो जो आइसक्रीम्स आपके यहाँ अवेलेबल हैं उनके बारे में आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, तुम ये क्लू यूज कर सकते हो। स्टार्ट विथ ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, और छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करिए जो टॉपिक के बारे में मतलब रखता हो मैटर, उससे आप शुरू करेंगे। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन एरिया, और तुम्हारे एरिया में कौन कौन से आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल है उनको सीरियल वाइज 1 2 3 ऐसे करके आप उसको लिख लें उसको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आइसक्रीम के कॉमन फ्लेवर कौन कौन से हैं, जैसे चॉकलेट वनीला ये सब कॉमन फ्लेवर है, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। और उनके ब्रांड में, पर्टिकुलर ब्रांड में कौन सा कॉमन फ्लेवर है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अंडर ईच ब्रांड विच फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट। आप लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड में कौन से जो फ्लेवर है सबसे ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द प्राइसेस, उनके पैसे उनके प्राइस क्या हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। उसके बाद में आपको लिखना है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम क्या है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं रिपोर्ट। मुझे उम्मीद है आप लिख लेंगे, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, नाउ come to the next exercise, that is world building. Okay, but what is world building? Listen, color the boxes that have rhyming words. उन बॉक्सेस को कलर करना है जो जो जिनमें लिखे हुए दो वर्ड्स राइमिंग वर्ड है। बेटा देखिए, here are 12 boxes and these all boxes have two words in each. Okay, now you have to find the box, color the box that have rhyming words. Okay, so let's read. City cart, is this rhyming? No, this is not a rhyming word. Heat street. Okay, so this one is rhyming word ना, so आप इसको कलर कर सकते हैं हीट स्ट्रीट। ब्लॉस गॉस ये भी है राइमिंग वर्ड। डू गो नहीं है। हार्ड यार्ड ये है। बाउल डाउल है। काउ सो नहीं है। लेबल टेबल है। स्काई माई है। प्ले ओबे है। रेस फेस है। राइट नाइट है। तो इन सब को आप राइमिंग वर्ड्स को कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, इसमें कुछ भी मुश्किल काम है नहीं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोइम। पोइम के अंदर ये वर्ड क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं, आप इसके बारे में लिखिए ज़रा। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब जॉयफुल। क्या थी जॉयफुल, क्या थी, आपने पोइम पढ़ी होगी, आप देख लेना। SIGHT जॉयफुल क्या थी, साइट। जॉयफुल क्या थी, साइट। तो जॉयफुल साइट थी। लिटिल क्या था, लिटिल था बेटा उनका CART कार्ट। क्या था, लिटिल कार्ट, तो आप लिख सकते हैं कार्ट। उसके बाद आप लिख सकते हैं राउंड। राउंड क्या था, अम्ब्रेला। UMBRELLA अम्ब्रेला। तो राउंड क्या था उनका, अम्ब्रेला। और जॉयफुल क्या थी, जॉयफुल क्या थी, जॉयफुल साइट। SIGHT साइट। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें से कि व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोइम, जॉयफुल साइट, यानी कि साइट को वर्ड जॉयफुल डिस्क्राइब करता है। लिटिल कार्ट, कार्ट को वर्ड लिटिल डिस्क्राइब करता है। और राउंड अम्ब्रेला, इट मीन्स अम्ब्रेला कैसा है, राउंड है। तो ये अम्ब्रेला, लिटिल, जॉयफुल ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो हमारी पोइम में आए हैं। नाउ बेटा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है, आप देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हैं, ये देखिए व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, डेट इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स माउंट्स के कौन कौन से यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, माउंट्स, फ्लेवर, क्लस्टर। हमारे पास 3 वर्ड है। अब आप पोएम में देखिए कि इन तीनों वर्ड्स के लिए कौन कौन से जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड पोएम में यूज हुए हैं। देखिए हम देखते हैं वापस। माउंट्स, माउंट्स के लिए कौन सा यूज हुआ है, ये देखिए माउंट्स के लिए यूज हुआ है माउंट्स ऑफ कूलिंग एंड
वाइट, कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो ब्राउन एंड वाइट कैसे है माउंट्स? कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, HICK, थिक, थिक क्लस्टर है। तो ये वर्ड्स हैं जो पोएम में यूज हैं, यू मे सी इन द पोएम ऑल्सो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फन टाइम। कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशनड इन ईच। ओके, ये हर कलर जो मेंशन किया हुआ, जैसे चॉकलेट कलर है, चॉकलेट लिखा हुआ है तो आपको चॉकलेट कलर इस बॉक्स को करना है। इसमें वनीला लिखा हुआ है तो वनीला आपको करना, ऑरेंज में तो ऑरेंज, ब्लैक करंट में ब्लैक करंट। ओके, इस तरह से इन सब को आपका कलर इन बॉक्सेस में कर लेना है। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। अब आपको क्या करना है, इस स्पेस में आपको अपनी ड्रीम आइसक्रीम, जिसको आप पसंद करते हो, आपकी फेवरेट आइसक्रीम, उसको ड्रॉ करके कलर करना है। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, द कलर्स, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स, एक्सेट्रास। ओके, इन सब चीज़ों का आप यूज करते हुए इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे और ये अपना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम इज, हैव यू एवर ईटन कुल्फी, द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? The following sentences describe how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentence. देखिए order. Write the correct number before each sentence. देखिए ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो सही करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। तो आपको हर सेंटेंस के पीछे करेक्ट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले आएगा थर्ड वाला, द कुल्फी वाला टेक्स्ट, द कुल्फी माउल्ड आउट फ्रॉम द, दिस वन विल बी द फर्स्ट, from mold out of the picture. Okay, second, he scoop out the kulfi on a plate, so this one is second. Then third hoga, he arranged some faluda around it, and fourth hoga, then he poured some sweet syrup over it and serves it. So this is the correct order of these sentences. Now I think you will arrange it. Okay, so dear students, this one is very easy. Now our chapter is over. Thank you. I hope that you have learned the chapter. If you have any doubt or question, you can ask me again. Okay, so try to understand all these questions and learn the poem very well. In our next video we will take our next chapter, Wonderful West. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Have a